technique जिसमें there is dedicated path between. So as the circuit is established first and then the signal is transmitted. Voice over transmission is best utilized. So it's the best example for circuit switch. The next is packet switching. Now in packet switching, there were two, what do you call, varieties or variations. The first one was datagram approach and the second one was virtual circuit approach. Now datagram में क्या हो रहा था? Packets were just injected into the network, independently with no reference to the packet that were already sent before. And so there was no path that was decided, no call setup or call establishment, etc. So the packets were just injected into the network independently. In virtual circuit, what used to happen was the path was established before the packets were transmitted, but this path was a shared path. It was not a dedicated path. ठीक है. सो पहले तो एक पैकेट जाता है रिक्वेस्ट का, फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होके एक्सेप्ट का पैकेट आता है. तो एट एवरी नोड देयर इज वेटिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है ना, बिकॉज जब भी पैकेट ट्रांसमिट होता है दूसरे नोड के पास में, तो वो नोड प्रोसेस करता है, फिर उसको भेजता है, फिर से प्रोसेस होता है, फिर उसको भेजता है. डेटाग्राम अप्रोच में क्या था कि एट एवरी नोड इट यूज्ड टू डिसाइड दैट what is the next leg in the route. So routing algorithm is to be done at every node in datagram approach. But in virtual circuit, the route was decided prior to sending the packets. ठीक है ना? इतना समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now, so that we saw till the last class. Now, today we are going to see the packet size. Now, what do you mean by packet size? See, when we are transmitting messages from one place to the other, I have always told you that we divide the packets into, we divide the message into packets. See, between circuit switch and packet switch, there was something called as message switch, जिसमें पूरा का पूरा मैसेज भेजते थे. ठीक है, बट उसमें बहुत ज्यादा डिले होने लगा. आगे मैं पढ़ाऊंगी तुम लोग को. उसमें बहुत ज्यादा डिले होने लगा, जिसके वजह से मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करके भेजा. ठीक है, अब हम लोग ये सीखेंगे, वी विल लर्न दैट हाउ द साइज ऑफ द पैकेट इन्फ्लुएंसेस द टाइमिंग. ओके, हाउ इट अफेक्ट्स द टाइम ऑफ time taken for a packet to reach its destination. All right, now can you all see the diagram niche side mein? The diagram is visible, right? This one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So see, there is some relationship between the packet size and the transmission time. Like I told you, that the size of the packet will determine the time, the transmission time. Okay. Now, from can you see here X and Y? These are the two stations. दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And A and B, these are the two intermediary nodes. Okay, so if the packet has to travel from X to Y, it has to go via A and B and then finally to Y. Okay, now let's assume that the message that has to be sent is of 40 octets, मतलब let's say bytes. ठीक है, 40 bytes का मैसेज है. ठीक है, हर एक मैसेज के आगे हम लोग 3 bytes का कंट्रोल इंफॉर्मेशन डालेंगे. इतना समझा? Yes, ma'am. हाँ, सो जो ये हेडर दिख रहा है, ये हेडर ब्लू कलर का, Yes, Yes, ma'am. वो हेडर क्या है? 3 bytes का कंट्रोल इंफॉर्मेशन है. और अभी जो हमारा पहला इंस्टेंस है, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर टेकिंग इज दैट अज्यूम दैट वन मैसेज ऑफ 40 bytes हैज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्टेशन X टू स्टेशन Y. ठीक है, 40 bytes का एक मैसेज है प्लस द कंट्रोल इंफॉर्मेशन. कितना हो गया? 43 bytes. 43 bytes. So now in time interval t1, ठीक है, time interval t1, this 43 bytes का पूरा जो पैकेट है, अभी हम लोग इसको पैकेट ही बोलेंगे क्योंकि अभी ये एक पैकेट है ना, मैंने मैसेज को डिवाइड नहीं किया, लेकिन
Still, I will use the terminology as packet. This is understood? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके सो नाउ 43 बाइट्स का पूरा जो मैसेज है, जो पैकेट है, वो टाइम इंटरवल T1 पे X से A के पास जा रहा है. दिखा? X से A के पास जा रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. टाइम इंटरवल T2 में वो A से B के पास जा रहा है. Yes, ma'am. और टाइम इंटरवल T3 में वो B से Y के पास जा रहा है. Yes, ma'am. है ना? सो 43 43 43 यानी 43 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 129. 129. 3 टाइम इंटरवल पे वो पूरा मैसेज ट्रांसमिट हुआ ना. वी आर टॉकिंग अबाउट फुल ट्रांसमिशन फ्रॉम X to Y. So at time interval T3 it got delivered. So 43 बाइट्स का एक मैसेज को 3 टाइम्स मतलब 3 बार यानी 43 into 3 129 ऑक्टेट टाइम्स, जो भी यूनिट है, सेकेंड है, मिली सेकेंड है, जो भी है, उतना टाइम लगा उसको X से Y तक पहुंचने के लिए. कितना? 129. Yes, ma'am. Yes, समझा ना? ये समझा? yes. ओके. नाउ लुक एट द B1. बी में क्या किया है? वो जो 40 बाइट्स का पैकेट था उसको 2 पैकेट में डिवाइड किया है. 2 पैकेट में डिवाइड किया है मतलब Message divide Break किया. किया. क्या है? मतलब 40 डिवाइड बाई 2 यानी एक पैकेट का कितना साइज हो गया? 20. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 20 बाइट्स हो गया ना. Yes, ma'am. हाँ. अभी देखो 40 बाइट्स का वो मैसेज था, उसको मैंने 2 पैकेट्स में डिवाइड किया यानी 20 बाइट्स के मैंने 2 पैकेट्स बनाए. अभी दोनों पैकेट पे 3 बाइट का कंट्रोल इंफॉर्मेशन जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक पैकेट का साइज कितना हो गया? 23 बाइट्स हो गया. Yes, Yes. ma'am. Okay, now let's see this. याद रखो हाँ 23 bytes. Now let's see this. Packet 1 is transmitted from X to A at time interval T1. At time interval T2, 1 आगे जाता है, A से B के पास गया 1 और पैकेट 2 स्टार्ट हुआ, X to A के पास आया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. T3 में पैकेट 1 डिलीवर हुआ, B to Y गया और पैकेट 2 A to B गया. T4 में क्या हुआ? वो B to Y गया. तो यानी कितना इंटरवल लगा? 4. और हमारा कितना था? 20. 23. हाँ 23 into 4 करो कितना होता है? 23 into 4 92. 92. तो उस कितना 92 ऑक्टेट टाइम्स लगा उसको, Yes, ma'am. है ना. 129 से 92 पे आ गया. देखो पैकेट साइज कम किया तो 129 से 92 पे आ गया वो. अभी थर्ड वाला देखते हैं जिसमें पैकेट को मैंने 5 पैकेट मैसेज में डिवाइड कर दिया यानी 40 बाइट्स को मैंने 5 पैकेट्स में डिवाइड किया. तो एक पैकेट का कितना हुआ? 40 डिवाइडेड बाय 5 8. 8 बाइट्स का 1 पैकेट. 8 बाइट्स के एक पैकेट, उसके ऊपर 3 बाइट्स का कंट्रोल इंफॉर्मेशन. सो 8 + 3 विच इज 11 बाइट्स. 11. यस. सो एक पैकेट का साइज कितना हो गया? 11 बाइट्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा ना? हाँ याद रखो ये 11 बाइट्स. ओके. नाउ T1 में पैकेट 1 came from X to A. T2 में 1 traveled ahead, 2 started. T3 में एक पहुंच गया, सेकेंड बीच में, थर्ड स्टार्टेड. T4 में क्या हुआ? सेकेंड पैकेट है वो पहुंचा, थर्ड बीच में आया, फोर्थ स्टार्ट हुआ. T5 में थर्ड पहुंच गया, फोर्थ बीच में आया, फिफ्थ स्टार्ट हुआ. T6 में फोर्थ पहुंचा, फिफ्थ बीच में आया. T7 में फिफ्थ पहुंचा. कितना टाइम इंटरवल लगा? 7. 7 ना. ये भी काउंट होगा ना क्योंकि पूरा मैसेज ट्रांसमिट होना है ना. Yes, ma'am. So for one message to get transmitted, if it is broken down into 5 packets,
It is taking 7 intervals, time intervals. So हमारा पैकेट का साइज क्या था? एक पैकेट का साइज 11. 11. 11 into 7, 77. 77 ऑक्टेट टाइम्स लगा इसको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कम हो गया, कम हुआ ना 92 से 77. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you check the last one, which is 10 पैकेट मैसेज. यानी मैंने एक मैसेज को 10 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 40 डिवाइड बाय 10, which is 4. 40 divided by 10, which is what? 4. 4. 4 plus 3. 3 bytes. 3 bytes of control information. कितना हो गया एक पैकेट का साइज? 4. 7. 7. याद रखो. Now see this. ये तो तुम लोग को मालूम है ट्रांजिशंस जो चलता है, ये तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो टाइम इंटरवल कितना लगा इसमें? 12. 12. 10 कौन बोला? Ma'am, 12. टाइम इंटरवल 10 तक तो सिर्फ 7 पैकेट्स 10 पहुंचा नहीं है अभी. Yes, ma'am. सो 12, या सो 12, और कितने साइज का था मैं एक पैकेट? 7. 7. 7. 12 7 जा 84. 84. अभी 77 से कितना पहुंचा वो? 84. 84. Which implies that if you divide a message till a particular limit, the time will reduce. But if you go on dividing it beyond the limit, मतलब यहाँ पे देखो ना क्या क्या उसको बहुत ज्यादा डिवाइड कर लिया ना, तो बहुत ज्यादा भी पैकेट साइज, मतलब बहुत ज्यादा पैकेट्स में भी डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, क्यों बढ़ गया? अच्छा मुझे बताओ ये क्यों बढ़ गया? Why did it increase? Ma'am, because 10 packets हो गए नहीं, मैसेज के. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, Because the size of the Ma'am, packets increased. size of the Packets increased, like number of packets increased. that's what even Ritika. Same answer. So what? Ma'am, So Ma'am, it's taking if interval the- time, that's why. Ma'am, if the number of packets are increasing, then it will take that much more amount of header bytes. yes. And Ritika, you also right. So header भी बढ़ रहा है. तुम लोग जब भी पैकेट्स को डिवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ हेडर बिट्स भी तो बढ़ रहा है Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना. तो वो कितना, अगर वो बियॉन्ड चला गया तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा ही टाइम लगेगा. And then if you are breaking a message into so many packets, the internal switching will also take time, which Ritika was absolutely correct. क्योंकि हर एक पैकेट को इमेजिन करो कि अगर मैं 5 पैकेट भेज रही हूँ तो 5 पैकेट को लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन टाइम 5 सेकेंड्स लग रहा है, लेकिन वही उसी 5 को अगर मैं 10 में करके भेज रही हूँ तो मुझे 10 सेकेंड डबल द टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, ma'am. समझा? इस वजह से इफ यू नो यू whatever is the packet size, if you go reducing it, the size of the packet beyond, reducing, it's not going to solve the purpose. You have to reduce it. See, now you will ask me that who reduces it. So all this logic is done when the network is installed and administered by the network architect. Okay, so all this logic is there. What I am trying to explain you is that how or why does it matter? Why does it matter? Why does the packet size matters? Why cannot we reduce the packet size to a very small number? So tomorrow if you become a network architect, you should know this, है ना? Yes, ma'am. इसीलिए ये चीज समझाई जा रही है तुमको. ठीक है, समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is packet size. I hope everybody is understood because मुझे एकदम वो कॉमन आवाजें ही सुनाई देती है जो मुझे रोज सुनाई देती है. बाकी की लड़कियां I really doubt what they're doing. Okay. Fine now.
Here we will be talking about comparison of circuit switch and packet switching. पैकेट स्विचिंग के दो है, जैसे डेटाग्राम है और वर्चुअल सर्किट है. अभी यहाँ पे ये तीनों सर्किट का कंपैरिजन दिया है, ठीक है. उसके लिए पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन फ्यू डेफिनेशंस कि प्रोपोगेशन डिले क्या होता है. प्रोपोगेशन डिले मतलब द टाइम इट टेक्स अ सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट. मतलब उसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट 2 मिनट कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. दैट इज प्रोपोगेशन डिले. ट्रांसमिशन टाइम मीन्स the time it takes for a transmitter to send out a block of data. मतलब to send out a block of data मतलब can anyone tell me transmission time किसी को समझा? and node delay भी चेक करो. come on, transmission क्या होगा. और एक्चुअली देखो दोनों ये दोनों मिला के है ना, ट्रांसमिशन टाइम एंड नोड डिले मिला के हम लोग उसको प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं. क्योंकि पहले हर एक नोड में प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, क्यूइंग होता है, एंड देन जितना उसको ट्रांसमिशन टाइम लगेगा वो मिला के वो पूरा चीज बोला जाएगा प्रोसेसिंग टाइम. तो वो इसीलिए यहाँ पे डायग्राम में उन लोगों ने प्रोसेसिंग टाइम दिया, देखो प्रोसेसिंग डिले. बट कैन एनीवन टेल मी ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? देखो पहले नोड डिले क्या होगा. नोड डिले क्या होगा, उसको प्रोसेस करने को टाइम लगेगा ना. इट विल हैव टू एक्सेप्ट द पैकेट, देन इट विल सी, इट विल चेक द डेस्टिनेशन, ठीक है. उसके बाद में इट विल सी विच लेग इज फ्री और नॉट फ्री और वट एवर, इट विल वेट, ठीक है. उसके बाद वो ये सब जो काम मैंने अभी बताया दैट इज नोड डिले. ये सब काम करने के बाद में वो आउटपुट लाइन में उसको भेजेगा, आउटपुट लाइन से वो आगे जाएगा. सो दैट टाइम, आउटपुट लाइन वाला टाइम इज अ ट्रांसमिशन टाइम. उसको पैकेट को आगे आगे आते आते टाइम लगेगा ना, उसके बाद में वो जाएगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये दोनों चीज मिला के हम लोग उनको प्रोसेसिंग टाइम ही बोलते हैं, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड इन प्रोसेसिंग, ठीक है. Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Hello. हाँ हाँ Ma'am, बोलो. ma'am, sorry to disturb. Ma'am, Deloitte से message आया है to join again at 3:45. अगेन एट 3:45. ओह Any idea, ma'am? क्या? no. Let me just speak to her. Okay, 1 second. We will continue this in the next class. I will have to talk to her. Yes, ma'am. चलो चलो चलो. I'll just stop. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah.